So now we'll be discussing the modes of inheritance in a very easy way. Do keep in mind that questions like these will come in exams, that I'll tell you to draw the autosomal dominant mode of inheritance with an example. So you can draw it like this, such as you can also have a question on autosomal recessive type of inheritance or X-linked inheritance types. So these kind of summary notes help you to give you an idea how you're supposed to attempt the questions. You can attempt them like these as well. So the first mode of inheritance is the autosomal dominant, meaning it's a dominant type of a disorder in which occurs on autosomes. Autosomes are those chromosomes other than the sex chromosomes. We know that in humans there are 23 pairs of chromosomes. The 23rd pair is the sex chromosomes pair, and the other 22 are the autosomes. So in any one, from chromosome number 1 to chromosome number 22 pair is affected in any of them, they'll have an autosomal dominant type of mode of inheritance. So now we'll see that if there is an affected father whose one allele is capital H, which codes for the Huntington-Chorea allele, and one is the normal one. So this father will be an affected father because one of the allele is Huntington-Chorea and it's an autosomal dominant one. So father himself is affected and he is crossed with a normal mother, unaffected mother, because both of her alleles are normal alleles. This is the key over here. So when you cross them, we draw a Punnett square. In the lectures, they have given crosses. It's better that you draw a Punnett square because it's easier to draw, it's simpler, it's less time consuming, makes you understand very well. So you'll write the father's gametes over here, one capital H here, one small h here, and you'll write the mother's gametes over here, one small h here and one small h here, and you will draw the combinations of the offsprings, capital H, small h, small h, small h, capital H, small h, small h, small h. So you see that half of the offsprings out of 1, 2, 3 and 4 offsprings, 2 offsprings are affected, that they have one allele which is the Huntington-Chorea allele, and autosomal dominant means that if out of these two, if any one of the allele is an affected one, the offspring will be affected because it's an autosomal dominant type of inheritance. So if any one of the alleles is affected, the offspring is affected. So if an affected heterozygous father is crossed or fertilizes or has a marriage with an unaffected mother which whose both alleles are normal, there are 50% chances of offsprings being affected because of the fact that it's an autosomal dominant type of inheritance. So if any one of the allele of these two, if any one is capital H or affected, then it will dominate over the normal one, and in doing so the offspring will show the disease and 50% offsprings are affected. So if we draw the pedigree in this case, कि आप एक फैमिली में देखना चाहते हो, जो है आप अपनी एक फैमिली देखी, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स में से जो ग्रैंड फादर थे, आपको मैंने लेक्चर में भी बताया, जो स्क्वायर्स होते हैं वो मेल्स को शो करते हैं और जो सर्कल्स होते हैं वो फीमेल्स को शो करते हैं, और शेडेड हो तो वो अफेक्टेड होता है आइदर मेल और फीमेल. तो अगर ग्रैंड फादर वॉज अफेक्टेड विद द डिजीज़, द ग्रैंड मदर वॉज नॉट, एंड दे हैड चिल्ड्रन आउट ऑफ विच a son and a daughter were affected while the other son and other daughter were not affected. Now the son who is affected, he wants to see that if he marries an unaffected female, what percent chances he has of having offsprings that are affected. So by this thing we know that 50% offsprings are affected if one of the parent is affected. Then we can see that supposedly I've drawn two circles over here. You can draw any type of offsprings. मैंने दो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स बनाए कि अगर इनकी दो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स होती हैं तो उनमें से एक डॉटर अफेक्टेड होगी, एक नहीं होगी. आप इनकी जगह दो स्क्वायर्स भी बना सकते हैं, एक स्क्वायर और एक सर्कल भी बना सकते हैं. वो आप ऑफस्प्रिंग्स जो मर्जी जेंडर का बना सकते हैं, बिकॉज ये एक ऑटोसोमल डिजीज़ है. ऑटोसोम्स को अफेक्ट करती है, सेक्स क्रोमोसोम्स को अफेक्ट नहीं करती. सेक्स लिंक डिजीज़ में सन और डॉटर का फ़र्क आता है
कि कौन शो करता है डिजीज़ को, कौन नहीं करता। लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ में जेंडर से रिलेटेड ऑफस्प्रिंग्स का कोई इशू नहीं होता। ऑफस्प्रिंग्स आधे इफेक्ट होंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ में, चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, और इस तरह फिर पेडिग्री भी ड्रॉ कर सकते। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप ऑफ द डिजीज़। अब जैसे कि आपको मैंने लेक्चर में बताया कि अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर्स हों तो 25% चांस होता है अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग पैदा होने का। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि एक पेरेंट अफेक्टेड हो और एक पेरेंट कैरियर हो। तो मैंने अभी आपको बड़ी मज़े की बात बताई कि कज़न मैरिजेज़ में यूजुअली होता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ ऑफस्प्रिंग्स में नज़र आ जाती हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल में जनरल पॉपुलेशन में बहुत कम नज़र आती हैं। आपको उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद बताऊँगी। तो हमने सबसे पहले की यहाँ पे याद रखनी कि कैपिटल सी नॉर्मल जीन है और स्मॉल सी सिस्टिक फाइब्रोसिस की जीन है। हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ा है कि वो एक एग्जांपल है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ की, तो वो मैंने इसलिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया। तो कैपिटल सी शोज़ द नॉर्मल एलील, स्मॉल सी शोज़ द सिस्टिक फाइब्रोसिस एलील। ये अपने लिए की याद रखेंगे जब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ को जब अगर कभी आपने शो करना हो तो उनके अलील को कैपिटल से शो किया करें, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने ऑटोसोमल रिसेसिव की डिजीज़ को शो करना होता है तो उनको स्मॉल लेटर से शो किया करें। इस तरह स्क्वायर्स बनाना और इंटरप्रेट करना आसान रहता है, ठीक हो गया। सो कैपिटल सी इज़ द नॉर्मल अलील, स्मॉल सी इज़ द सिस्टिक फाइब्रोसिस की अलील। इफ़ वन पेरेंट इज़ अ कैरियर, मतलब कैरियर जो पेरेंट होता है ना उसका एक अलील नॉर्मल होता है और एक अलील अफेक्टेड होता है, तो वो अफेक्टेड नहीं होते हैं, वो कैरियर होते हैं। मतलब दे आर कैरिंग द डीज बट दे देमसेल्व्स आर नॉट अफेक्टेड बिकॉज इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। के मतलब दोनों अलील्स के ऊपर अगर डिजीज़ होगी तब जाके वो शो होगा, वरना अगर एक नॉर्मल होगा ना तब वो रिसेसिव हो जाएगा, वो शो नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों स्मॉल सी होंगे ना तब वो डिजीज़ शो होती है, वो फिर फिनोटिपिकली शो होती है। ये फ़र्क है ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेटिंग में। डोमिनेटिंग में अगर दोनों लील्स में से अगर किसी एक के ऊपर भी डिजीज़ आ गई तो वो शो हो जाती है। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ में से अगर किसी एक अलील भी नॉर्मल है तो डिज़ीज़ नहीं शो होगी, बिकॉज जो दूसरी अलील का जो डिज़ीज़ है वो रिसेसिव टाइप में है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो दोनों अलील्स का रिसेसिव होना ज़रूरी है शो होने के लिए। तो हमने एक पहली प्रोबेबिलिटी बात की दैट वन पेरेंट इज़ अ कैरियर, फॉर एग्जांपल द फादर इज़ द कैरियर, फादर हैज़ अ नॉर्मल अलील and a cystic fibrosis allele small c, and the mother is unaffected, both are capital C. Capital C means normal alleles. फिर हमने इनका पनट स्क्वायर से इनकी जो सी हमने करवाए ऑफस्प्रिंग्स कौन कौन से होंगे। फादर के गैमिट्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए कैपिटल सी स्मॉल सी, मदर के गैमिट्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए, ठीक है, कैपिटल सी एंड कैपिटल सी। और फिर इनके क्रॉसेस करवाए तो देखे कि कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी यहाँ पे शो किया और कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये शो किया दैट नो ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड, ठीक हो गया, एंड 50% आर कैरियर्स। देखा ना, कैपिटल सी का एक बना, एक कैपिटल सी का बना, एक कैपिटल सी स्मॉल सी का बना, एक कैपिटल सी स्मॉल सी का बना। तो हमने देखा कि चारों ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि चारों में जो सा है नॉर्मल एलील आ गया। सो नो ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड फिनोटिपिकली, लेकिन 2 ऑफस्प्रिंग्स आउट ऑफ द 4 आर कैरियर्स, के मतलब कि इन 4 में से 2 ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ये डिजीज़ कैरी हो गई क्योंकि उनके अंदर एक स्मॉल सी आ गया है, ठीक है, लेकिन वो शो नहीं हुआ बिकॉज इट्स अ ऑटोसोमल रिसेसिव। दोनों स्मॉल सी होंगे तब जाके डिजीज़ शो होती है। सो दे आर कैरियर्स, दे आर कैरिंग द डिजीज़ बट दे देमसेल्व्स आर नॉट अफेक्टेड। सो नो ऑफस्प्रिंग इज़ अफेक्टेड बट 50% आर कैरियर्स। 4 में से 2 कैरियर्स हैं, तो मतलब 50% कैरियर्स हैं। तब ये कब सिचुएशन है नो ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड, जब एक पेरेंट कैरियर और एक अनअफेक्टेड है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स ही कैरियर्स हों, अगर दोनों पेरेंट्स ही कैरियर हों कि फादर के अंदर भी एक अलील स्मॉल सी की और मदर के अंदर भी एक अलील स्मॉल सी की, ये दोनों कैरियर्स हैं, मतलब कि ये स्मॉल सी विच इज़ द सिस्टिक फाइब्रोसिस के अलील को ये कैरी कर रहे हैं लेकिन इनमें शो नहीं हो रही। तो फादर एंड मदर दे आर अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर्स। And when we draw the Punnett square, we mention the father's gametes over here, capital C, small c, mother's gametes over here,
capital C, small c, and we make the crosses. So we make one offspring here, capital C, okay, capital C, small c, okay, capital C, small c, capital C, small c, स्मॉल सी, ओके। तो हमने इस तरह कॉम्बिनेशन बनाए, एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन और चौथा कॉम्बिनेशन। तो अब देखें चारों जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं इनमें से 1 2 3 4 एक जो ऑफस्प्रिंग है ना वो अफेक्टेड पैदा हो गया। कैसे? क्योंकि उसमें दोनों जो अलील्स हैं वो स्मॉल सी की आ गई हैं। और रिसेसिव तब शो होती है ट्रेट जब दोनों अलील्स अफेक्टेड हों। एक अलील अफेक्टेड होगी तब वो शो नहीं होगा बिकॉज एन ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप ऑफ मोड ऑफ इनहेरिटेंस। दोनों अलील्स का रिसेसिव होना ज़रूरी है शो होने के लिए। सो यू सी, आउट ऑफ 4 1 ऑफस्प्रिंग इज अफेक्टेड, तो दैट मीन्स 25% ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड, दे आर फिनोटिपिकली अफेक्टेड, उनमें डिजीज शो हो गई। और 50% कैरियर्स हैं। वो 50% कैरियर कैसे हैं? कैसे कि इन चार में से 1 2 3 4 दो जो उनसे हैं वो कैरियर्स हैं। तो चार में से अगर दो कैरियर्स हैं तो उसका मतलब है 50% कैरियर्स हैं, 25% अफेक्टेड है बिकॉज चार में से एक अफेक्टेड है, और 25% नॉर्मल है, ना वो कैरियर है और ना ही वो अफेक्टेड है। 50% दो जोन से हैं वो कैरियर हैं और 25% 1:4 वो क्या है? अफेक्टेड। अब आपको एक बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि मैम हम ये रेशोज कैसे निकालते हैं, 1:4 और 2:4 कैसे? इसका निकालते हैं कि टोटल नंबर को हम लिखते हैं राइट साइड पे और उनमें से जो चीज़ अफेक्टेड है या कैरियर है उसको लिखते हैं लेफ्ट साइड पे। तो आप देख रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग का टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4। तो हमने 4 का नंबर यहाँ मेंशन कर दिया। और अफेक्टेड कितने हैं? एक ही अफेक्टेड है तो उसको यहाँ मेंशन कर दिया। तो 1:4 ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड है, 25% अफेक्टेड है, ठीक है। और कैरियर्स किस तरह लिखे कि टोटल ऑफस्प्रिंग कितने हैं? 1 2 3 4, 4 यहाँ मेंशन कर दिया राइट साइड पर। कैरियर्स कितने हैं? 1 2, तो 2:4 कैरियर्स हैं। इस तरह हम निकालते हैं रेशोज। अब ये बात हो रही है कि पेडिग्री हम फिर बनाएं इसका। तो आपने देखा कि पेडिग्री की जो हमने गाइडलाइंस देखी हैं तो जो कैरियर्स होते हैं ना उनका हाफ शेडेड होता है। तो कैरियर फादर को कैरियर मदर की मैरिज हुई तो उसके नतीजे में उनके ऑफस्प्रिंग्स बने। ऑफस्प्रिंग का जेंडर कुछ भी हो सकता है। मैंने 2 मेल्स बनाए और 2 फीमेल्स बनाई हैं, ठीक है। आप चाहे चारों मेल्स बनाएं, चारों फीमेल्स बनाएं, या जो मर्जी कॉम्बिनेशन रखें जेंडर्स का, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से एक फ़ीमेल बनाई, 2 मेल्स बनाए और एक फ़ीमेल बनाई। 2 फीमेल्स और 2 मेल्स मैंने बना दिए। उनमें से एक फ़ीमेल को मैंने अनअफेक्टेड बना दिया ये वाला, 2 मेल्स को कैरियर्स बना दिया ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला, और एक फ़ीमेल को अफेक्टेड बना दिया। तो मैं चाहे जिस मर्ज़ी जेंडर कॉम्बिनेशन रखूँ उनमें से 1/4 जो उनसे हैं क्या होंगे? अफेक्टेड। 2/4 जो उनसे हैं वो होंगे कैरियर्स एंड 1/4 होंगे अनअफेक्टेड। दैट मीन्स दे आर अनअफेक्टेड एंड दे आर ऑल्सो नॉट कैरियर्स। अब बात आ गई कंसेंजुअस मैरिज की कैसे इसमें बनती है। जो जैसे कि लेक्चर में बात की गई कि जो होते हैं ना हमारे पास रिसेसिव डिसऑर्डर्स, वो पॉपुलेशन में इतने शो नहीं होते। वो पॉपुलेशन में इसलिए इतने शो नहीं होते कि यूजुअली जो लोग होते हैं वो पहली बात है कि वो कैरियर्स होते हैं और उनकी शादी किसी जब अनअफेक्टेड से होती है तो ऑफस्प्रिंग्स में इफेक्ट आता ही नहीं है। तो अगर एक फैमिली में अगर किसी में कैरियर अगर है भी तो वो अगर कहीं बाहर शादी कर लेते हैं जो कि अनअफेक्टेड हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड नहीं होंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स इसलिए दुनिया में इतने नहीं हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब वो किसी अनअफेक्टेड से शादी कर लेते हैं तो वो ऑफस्प्रिंग्स फिर अफेक्टेड नहीं पैदा होते, नो ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड। लेकिन जिन फैमिलीज़ में डिज़ीज़ रन कर रही होती है कि एक कज़न है उसके मेल कज़न है वो कैरियर था और एक फ़ीमेल कज़न कैरियर थी और उनकी कंसेंजुअस मैरिज होगी, कज़न मैरिज होगी, उसके नतीजे में 25% ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड पैदा हो सकते हैं। और ये उसी केस में पॉसिबल है कि जिनकी फैमिलीज़ में रिसेसिव डिसऑर्डर्स रन कर रहे होते हैं। लेकिन उसी फैमिली में से अगर यही कैरियर फादर किसी अनअफेक्टेड मदर से शादी कर लेता है तब जाके ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं पैदा होंगे। दैट इज़ द रीज़न कि जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो यूजुअली कंसेंजुअस या कज़न मैरिजेस में ज़्यादा वजह पैदा होती है। उसका डोमिनेटिंग से इसलिए ताल्लुक़ नहीं है बिकॉज डोमिनेटिंग चाहे अपनी फैमिली में शादी करें या चाहे बाहर शादी करें। अब जैसे कि इसमें देख रहे हैं ना कि इस बंदे ने तो एक अनअफेक्टेड मदर से शादी की है, तो डोमिनेटिंग जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं ना उनका
कोई रिलीजन कंसेंजुअस या कज़न मैरिज से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो चाहे फैमिली में शादी करें चाहे फैमिली में बाद शादी करें, अगर अफेक्टेड होगा तो ऑफस्प्रिंग्स 50% अफेक्टेड होंगे इफ़ ही इज़ इन हेटेरोजाइगोट। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव ऑर्डर सिर्फ तभी शो होते हैं जब दोनों जो अलील्स हैं ना, ये दोनों अलील्स पे जब रिसेसिव ट्रेट आ जाए। तो इसलिए पॉपुलेशन में इसलिए इतना ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैं पेन रख दूँ, वो इस वजह से कि अगर कैरियर किसी अनअफेक्टेड से शादी कर लेता है तो ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड नहीं होता, बिकॉज कैरियर्स बन जाते हैं और आधे जो उनसे हैं वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर दोनों ही कैरियर आपस में शादी कर लें तब जाके 25% जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अफेक्टेड पैदा होंगे। तो रिसेसिव डिसऑर्डर्स दैट इज़ वाई कंसेंजुअस या कज़न मैरिजेस में ज़्यादा देखा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो लेक्चर में भी बड़ा डिटेल में बताया गया लेकिन मैं फिर से दोबारा बता दूंगी, विच इज़ द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से ये मुराद है कि ये जो डिज़ीज़ है वो डोमिनेटिंग है, मतलब अगर एक भी अलील आ गया तो वो नॉर्मल के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक्स लिंक है कि एक्स क्रोमोसोम्स पे सेक्स क्रोमोसोम विच इज़ द एक्स उसके ऊपर होगा। आपको पता है जो हमारे 23 क्रोमोसोम्स हैं उनमें से 23rd जो क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर उनमें कोई ऐसी जीन का इशू आ गया और उस जीन की वजह से कोई डिजीज़ हो तो ऐसे एक्स लिंक डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। अब हम बात करते हैं कि फादर अफेक्टेड है। आपको पता है जो मेल्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं और जो मदर्स होती हैं फीमेल्स वो एक्स एक्स होती हैं। तो अगर फादर का एक्स जो सा है वो अफेक्टेड है, मैंने कैपिटल ए मेंशन किया है एक्स क्रोमोसोम जो अफेक्टेड है ना उसे शो करने के लिए, और जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है। जो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है उस पर कैपिटल ए मेंशन किया हुआ है। ठीक हो गया, ये की याद रखें। अब हम एक अफेक्टेड फादर को क्रॉस करवाते हैं एक नॉर्मल मदर के साथ। फादर के हमने गैमीट्स यहाँ मेंशन कर दिए जो कि स्पर्म्स हैं, एक्स कैपिटल ए और वाई। फादर के गैमीट्स यहाँ मेंशन हो गए और मदर के यहाँ मेंशन हो गए एक्स एक्स, और इनके फिर हमने ऑफस्प्रिंग्स बनाए और इसमें जेंडर स्पेसिफिसिटी होगी। क्यों? क्योंकि एक्स वाई शो करता है कि मेल और एक्स एक्स शो करता है कि वो फीमेल है। ये बात ऑटोसोमल डोमिनेट और ऑटोसोमल रिसेसिव में नहीं थी, बिकॉज दोज डिजीजेस आर अफेक्टिंग द ऑटोसोम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। वो किसी भी टाइप के जेंडर वाले ऑफस्प्रिंग में आ सकती हैं, लेकिन जो एक्स लिंक डिजीजेज होती हैं वो स्पेसिफिक जेंडर में आएंगी। वो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज़ है और अफेक्टेड जो क्रोमोसोम है वो फादर का है, एक्स ए वाई है, और मदर के साथ जो नॉर्मल मदर का क्रॉस करवाएंगे तो उसके नतीजे में हम जब पन्नेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, फादर के गैमीट्स हमने यहाँ बना दिए एक्स ए वाई एंड एक्स एक्स, और हमने फिर इनके क्रॉसेस करवाए तो एक्स एक्स ए एक्स वाई एक्स एक्स ए एक्स वाई। तो आप देख रहे हैं कि जो मेल्स पैदा हुए हैं एक्स वाई वो नॉर्मल पैदा हुए हैं, और जो फीमेल्स पैदा हुई हैं वो सारी अफेक्टेड हैं। डॉटर्स आर ऑल अफेक्टेड। डॉटर्स अफेक्टेड क्यों है सारी? बिकॉज उन दोनों डॉटर्स में एक ऐसा क्रोमोसोम एक्स का आ गया जो कि अफेक्टेड था, एंड सिंस एक्स लिंक डोमिनेंट टाइप ऑफ अ मोड ऑफ इनहेरिटेंस, सो अगर एक भी एक्स आ गया तो वो डोमिनेट कर जाएगा नॉर्मल वाले के ऊपर। सो ऑल फीमेल्स or daughters are affected if father is affected in terms of X-linked dominant disorder. Okay? Now we'll talk about the fact कि X-linked dominant disease है और mother affected है, मतलब father का X normal है XY, लेकिन mother के दोनों X में से एक X affected है। तो फिर क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा? हम पन्नेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। फादर के गैमीट्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए XY, मदर के गैमीट्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए X और एक X ए अफेक्टेड वाला। फिर हमने कॉम्बिनेशंस ड्रॉ किए। सो एक्स 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 वाई एक्स अफेक्टेड और एक एक्स नॉर्मल, एक एक्स अफेक्टेड और एक वाई आ गया। सो बोथ डॉटर्स एंड सन्स हैव 50% प्रोबेबिलिटी टू बी अफेक्टेड। कैसे? कि दो सन्स में से एक सन अफेक्टेड पैदा हुआ है और एक सन अनअफेक्टेड पैदा हुआ है, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट वन। और दोनों डॉटर्स में से एक डॉटर नॉर्मल पैदा हुई है और एक अफेक्टेड पैदा हुई है, चांसेस हैं। तो फिर दोनों डॉटर्स और सन को 50% चांस है अफेक्टेड पैदा होने का, बिकॉज दो सन्स में से एक सन अफेक्टेड हो सकता है और दो फीमेल या डॉटर्स में से एक डॉटर अफेक्टेड हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर फादर अफेक्टेड होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ में तो ऑल डॉटर्स विल बी अफेक्टेड,
लेकिन अगर मदर इफेक्टेड है एक्स लिंक्ड डिजीज में, सो बोथ डॉटर्स एंड सन्स हैव 50% प्रोबेबिलिटी टू बी अफेक्टेड। इसलिए आप पन्नेट स्क्वायर्स को ना खुद ड्रॉ करके देखोगे, फिर आपको ज़्यादा और बेहतर समझ लगेगी। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस। इसमें याद रखें कि जो एक्स क्रोमोजोम है वो अफेक्टेड है लेकिन वो रिसेसिव है। रिसेसिव से मुराद ये कि दोनों अलील्स के ऊपर डिजीज़ ट्रेट होना ज़रूरी है शो होने के लिए। अगर एक पे होगा तो दूसरा एक्स उसको ओवरकम कर लेगा, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव वन। अब फादर है अफेक्टेड। आप कहोगे मैम फादर अफेक्टेड कैसे है, वाई भी तो मौजूद है, वो उस पर डोमिनेटिंग कर जाएगा बिकॉज इट्स एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव। नहीं, वाई एक्स के ऊपर कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकता, बिकॉज वाई इज़ अ सेपरेट टाइप ऑफ क्रोमोजोम, एक्स इज़ अ सेपरेट टाइप ऑफ क्रोमोजोम। ठीक हो गया। इसकी रीज़न मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगी। तो जो वाई होता है ना, वो एक्स के ऊपर कभी भी डोमिनेटिंग नहीं हो सकता। बेशक वाई खुद भी नॉर्मल ही है, लेकिन अगर एक्स अफेक्टेड है मेल्स में और वो रिसेसिव भी हो तो वो शो हो जाएगा। लेकिन अगर फीमेल के अंदर एक, जैसे अगर ये फीमेल है, यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ, उसका एक एक्स अफेक्टेड है रिसेसिव, एक एक्स अफेक्टेड नहीं है, सो वो अनअफेक्टेड होगी लेकिन वो कैरियर होगी। मतलब कि वो रिसेसिव ट्रेट को वो कैरी कर रही है लेकिन वो अनअफेक्टेड है। लेकिन अगर फादर का एक ही एक्स है और वही रिसेसिव उसके अंदर ट्रेट आ गई तो वो शो होगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्स पे डोमिनेट नहीं हो सकता। अब मैं बताऊंगी कि अगर फादर अफेक्टेड है, फादर का जो एक्स है उस पर स्मॉल ए है, रिसेसिव ट्रेट आ गया और वो अफेक्टेड हो गया, उसको हमने क्रॉस करवाया एक नॉर्मल मदर के साथ, तो फादर के हमने गैमीट्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं, एक्स स्मॉल ए वाई, और मदर के हमने, सॉरी मैंने यहाँ मदर मेंशन नहीं किया, मदर की हमने यहाँ मेंशन कर दिए। ठीक हो गया, एक्स एक्स। अब हमने जो सा है इनके क्रॉसेस करवाए, एक्स एक्स ए, एक्स वाई, एक्स एक्स ए एंड एक्स वाई। तो आप देख रहे हैं कि इस सब के नतीजे में जो सन्स हैं वो मेल्स जो उनसे हैं वो नॉर्मल पैदा हो रहे हैं। क्यों? वो इस वजह से कि जो मेल्स होते हैं उनमें से जो फादर से ना वाई आएगा, तो वाई तो फादर में ऑलरेडी नॉर्मल है तो वो वाई उनमें आ गया। अब मदर से जो सा है वो एक्स आएगा और मदर के तो दोनों एक्स नॉर्मल है, तो दैट इज़ वाई सन्स जो उनसे हैं वो नॉर्मल होंगे अगर फादर इफेक्टेड है इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस। लेकिन ऑल डॉटर्स आर कैरियर्स। कैरियर्स क्यों है? क्योंकि उनमें एक जो क्रोमोजोम है ना एक्स का, वो एक्स स्मॉल ए वाला है, तो वो अफेक्ट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उनमें एक नॉर्मल एक्स भी मौजूद है जो कि डोमिनेट कर जाता है, सिंस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। सो दोनों अगर अफेक्ट होंगी, दोनों पे अगर एक्स स्मॉल, दोनों एक्सिस के ऊपर अगर स्मॉल ए होगा तब जाके डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। लेकिन चूंकि इसमें ऐसा नहीं है, सो ऑल डॉटर्स आर कैरियर्स एंड ऑल सन्स आर normal, neither they are carriers nor they are affected. So in case of X-linked recessive diseases and the father is affected, all daughters are carriers. अब हम बात करते हैं इफ़ मदर इज़ अनअफेक्टेड कैरियर, कि फादर जो है वो एक्स वाई है लेकिन मदर का जो एक एक्स है वो नॉर्मल है और एक एक्स स्मॉल ए वाला है, कि मदर कैरियर है, तो उसके नतीजे में फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वो ये होगी कि हम फादर के गैमीट्स को यहाँ मेंशन कर देंगे एक्स वाई, और मदर के जो गैमीट्स हैं हम उनको यहाँ मेंशन कर देंगे, एक नॉर्मल एक्स और एक अफेक्टेड एक्स स्मॉल ए। अब इनके हम प्रोसेस करेंगे, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स अफेक्टेड एंड एक नॉर्मल एक्स, और एक एक्स अफेक्टेड और एक वाई। तो आप देख रहे हो इसमें कि जो सन्स हैं हमारे पास, एक सन नॉर्मल है और एक सन अफेक्टेड है। अफेक्टेड क्यों है? क्योंकि सन्स जो हैं वो मेल्स होते हैं और मेल्स के अंदर एक भी एक्स रिसेसिव वाला भी बेशक अगर आ जाए, वो जो सा है वो अफेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि वाई एक्स पे डोमिनेट नहीं हो सकता। सन्स हैव अ 50% प्रोबेबिलिटी टू बी अफेक्टेड, कीवर्ड अफेक्टेड, बिकॉज वाई जो सा है वो एक्स के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता। तो इन दोनों सन्स में से एक सन की प्रोबेबिलिटी 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो अफेक्टेड पैदा हों, एंड डॉटर्स हैव 50% प्रोबेबिलिटी टू बी कैरियर्स, नॉट अफेक्टेड, कैरियर्स। क्यों? क्योंकि एक तो नॉर्मल डॉटर है, दूसरी जो डॉटर है उसके एक एक्स के ऊपर स्मॉल ए है लेकिन दूसरा एक्स तो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल रिसेसिव अलील के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा बिकॉज इट इज़ अ एक्स-लिंक्ड रिसेसिव टाइप ऑफ अ डिजीज़। सो एक डॉटर नॉर्मल है, एक डॉटर जो सी उसमें वो कैरियर है। सो सन्स हैव अ 50% प्रोबेबिलिटी टू बी अफेक्टेड
because Y cannot dominate over X, and daughters have a 50% probability to be carriers because one of their X is normal and it dominates over the recessive allele. So ये है X linked recessive के combinations. Father affected होगा, all daughters will be carriers. Mother carrier होगी, उसका एक X के ऊपर A है, तब sons have 50% probability to be effective and daughters have 50% probability to be carriers. ठीक है. So this is how you do all the modes of inheritance. You are supposed to draw them yourself. और आप ये खुद भी ड्रॉ करके देखेंगे तो जेनेटिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ना आपको दुनिया में कुछ भी नहीं लगेगी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन.